Hello everyone. So today we'll start with Fermi-Dirac statistics. Now what is Fermi-Dirac statistics? हम उसी तरीके से इसमें प्रोसीड करेंगे जैसे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को डिराइव किया था. जो हमारी अप्रोच है वो कॉमन अप्रोच रहेगी. ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही बताई थी. फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है कौन से पार्टिकल्स ओबे करते हैं? वी नो this statistics is obeyed by the indistinguishable particles which are having half integral spin. That means particles which are fermions. They obey the Fermi-Dirac statistics. Now, what are those particles? Like electrons, protons, neutrons. These are some of the examples of fermions. So now we'll see that how we can distribute fermions in different energy states. So for this system हम उसी तरीके से लेंगे जो हमने पहले लिया था. We are considering a system having n indistinguishable particles. ठीक है, ये हमारे particles हैं which are fermions. हमने एक system लिया जिसमें हमारे पास total n number of indistinguishable particles हैं और ये जो particles हैं they are having half integral spin. ठीक है, अब हमें जो है इन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. लेट्स से हमारे पास जो है इन टोटल हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है. ठीक है, और लेट्स से जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है हमारा उसकी एवरेज एनर्जी है U1, फिर जो सेकंड एनर्जी लेवल है उसकी एवरेज एनर्जी है U2 एंड सो ऑन. वी हैव टोटल अप टू K एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा lowest energy level है वहाँ energy U1 है and let's say the total number of particles that can be distributed in this particular energy state is N1. Let's say यहाँ पर हमारे पास total number of particles N2 है. So on kth interval पे हमारे total number of particles Nk है और इसकी जो average और you can say जो approximate energy है that is UK, the approximate constant energy or the average energy of the kth energy state. Now let's say these energy states are divided into sub energy levels. These are now further divided into number of sub levels. ठीक है, और let's say जो हमारा first energy state है उसमें जो number of energy levels sub energy levels present है let it be G1. जो हमारी second energy state है let G2 is representing the number of sub energy levels corresponding to the second energy state. Similarly kth में जो हमारे number of sub energy levels होंगे let it be Gk. So if I am considering the kth energy state, then what does it mean? It means that we have to distribute total Nk number of particles in Gk sub energy levels corresponding to this kth energy state where the approximate constant energy is Uk. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने I तक लिख रखा है कि हम फर्स्ट से I तक ले रहे हैं. टोटल I नंबर ऑफ स्टेट्स है. हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे K इसलिए बताया है क्योंकि आगे जाके हम K ही कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो हमारा फिर ये G1, G2, G3, G4, Gi अप टू Gk क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. इसको हम डीजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट भी बोलते हैं. तो Gi जो है इट इज द डीजेनरेसी और द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द ith एनर्जी लेवल. ठीक है, नाउ Fermi-Dirac statistics में these are the following conditions that we should know. First condition क्या है हमारी? very simple, जो हमारे particles हैं they are indistinguishable from each other. ठीक है, particles हमारे indistinguishable हैं and you can also add here that these particles जो हैं they have half integral spin. Now next कंडीशन क्या है? these particles जो है they will obey Pauli's exclusion principle. this is the most important condition of the Fermi-Dirac statistics. जो हमारे particles हैं they should obey the Pauli's exclusion principle. इसका मतलब क्या है? जो हमारा सब लेवल्स हैं जिनमें हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक सब एनर्जी लेवल जो है इट कैन हैव ईदर 0 और 1 फर्मियन. एक से ज्यादा फर्मियन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, सो
ईच सब लेवल और सेल यू कैन से, अगर हम फेस स्पेस की बात करें इसी को ही तो हम कह सकते हैं हमारा जो फेस स्पेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. लेट्स से फेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू टोटल k कंपार्टमेंट्स. हर एक कंपार्टमेंट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. तो लेट्स से kth कंपार्टमेंट जो है हमारा उसमें वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स nk और उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को हमने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड किया. लेट्स से द नंबर ऑफ दो सेल्स आर gk. ठीक है. एंड जो वॉल्यूम होता है हमारा एक पर्टिकुलर सेल का व्हेन वी आर कंसीडरिंग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, तो वॉल्यूम जो है हमारा एलिमेंट्री सेल का वो होना चाहिए h क्यूब. मिनिमम वॉल्यूम h क्यूब से कम नहीं हो सकता. वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. तो इसमें हमारे पास जो ये डिफरेंट सेल्स हैं या जो सब एनर्जी लेवल्स हैं दे कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 1 पार्टिकल. सो हमारे पास जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं या तो उसमें एक पार्टिकल होगा या एक भी नहीं होगा. तो इसका मतलब जो है दिस इज इम्पोर्टेंट, जो हमारा जी आई है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आई. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ व्हेन वी वर एक्सप्लेनिंग 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जो हमारे नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स है जी आई, जिनमें हमें टोटल ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ni. क्यों? सपोज मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं. ठीक है. and I have total 2 sub energy levels and I have to distribute these 2 particles in these 2 cells. cells के फॉर्म में इसको कर लो. cells के फॉर्म में तुम लोग को ज्यादा पता है क्योंकि हम शुरू से वैसे ही कर रहे हैं. सपोज मेरे पास 2 cells हैं. ठीक है. और इसमें मुझे 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये पार्टिकल्स मेरे indistinguishable particles हैं which are having half integral spin. That means ये particles हमारे fermions हैं. अब इन 3 particles को 2 cells में accommodate करना जो है वो नामुमकिन है. It is impossible. दोनों में या तो 0 पार्टिकल होगा या 1 होगा. तो एक में हम 0 कर सकते हैं, एक में 1 कर सकते हैं, एक में 1 कर सकते, इसमें 1 कर दें, इसमें 0 कर दें, या दोनों में 1 पार्टिकल. तो मैक्सिमम जो है हम इस सेल में 2 ही पार्टिकल्स जो हैं उनको accommodate कर सकते हैं. We cannot accommodate the particles greater than GI. So it means जो हमारे number of cells हैं जिसमें हमें पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ni. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट विल बी कांस्टेंट. और जो हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज हैं. हर एक पार्टिकल जो है हर एक एनर्जी लेवल पे उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी. तो सम होगा टोटल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स टेकन टुगेदर. इट विल कॉन्स्टिट्यूट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जो हमारी टोटल एनर्जी है, लेट्स से आई एम डिनोटिंग इट बाय स्मॉल u, then that will be equal to n1u1 plus n2u2 plus n3u3 so on up to plus nk uk. ठीक है. जो अभी मैंने चीज बताई वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है. हमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो डिराइव करना है फॉर द पार्टिकल्स विच आर ओबेइंग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स. दैट मींस फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. फिर हम उसका लॉग लेंगे. फिर हम क्या कहेंगे कि फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट or the equilibrium state this thermodynamic probability should be maximum, and for maxima or minima we put the first derivative to be equal to 0. ठीक है. तो thermodynamic probability निकालने के लिए सबसे पहले we should know the system. system वही है जो मैंने भी explain किया कि हमारे पास phase space है, it is divided into large number of compartments. हर एक compartment जो है it is basically representing a small interval of energy or momentum. ठीक है. इस particular compartment जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू फर्दर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स हैविंग द साइज h क्यूब. इट इज कंसीडर्ड दैट और एज्यूम्ड दैट जो हमारा साइज ऑफ कंपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा. व्हाई? ये हमारा अगर ज्यादा होगा then that means each compartment जो है that can contain a very large number of elementary cells. So it is assumed
that the size of compartment is very large as compared to the size of the cell, so that each compartment contains a very large number of elementary cells. हम एक compartment जो है उसको बहुत ज़्यादा number of elementary cells में divide कर सकते हैं अगर हमारा compartment जो है उसका size ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसी तरीके का सिस्टम है, n1 n2 सो ऑन अप टू n के जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, और हर एक कंपार्टमेंट जो है लेट्स से उसकी मीन एनर्जी वैल्यूज है u1 u2 u3 अप टू uk। इसको हम एनर्जी लेवल के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट्स जो है हमारे दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और हर एक एनर्जी लेवल जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। हर एक एनर्जी लेवल जो है उसको हमने डिवाइड किया फर्दर इनटू लार्ज नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स जो है दैट इज गिवन बाय GI फॉर द ith एनर्जी स्टेट, ठीक है। So let's say we have total k number of compartments, और हर एक compartment जो है is divided into large number of elementary cells. Let's say G1, G2, G3 up to Gk जो है these are representing the number of elementary cells in the first, second, third, fourth, so on up to k compartments respectively. So first condition हमारी क्या होनी चाहिए, the total number of particles in the system should be constant. N is equal to N1 plus N2 plus N3 so on up to N के। आई होप सिस्टम सबको क्लियर है। सिस्टम इसी तरीके से है जैसे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हमने लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम बस हमारा क्या डिफरेंस आया है, देखो यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस है कि ये पार्टिकल्स फर्मियंस है, सो दे विल ओबे द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, दैट मीन्स दे विल obey the Pauli's exclusion principle. So each cell can accommodate a maximum of one particle. Each cell can have either 0 or 1 particle. So GI जो है it must be greater than equal to NI. ये important condition है. Now considering this condition, we will now find the thermodynamic probability. ठीक है, particles हमारे indistinguishable हैं. So यहाँ पर जो है हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए we'll consider only a single compartment. So let's say we are considering the ith compartment in which we have Ni indistinguishable particles that are to be distributed in the GI cells. ठीक है, तो let's say we are considering a ith compartment जिसको हमने टोटल GI cells में डिवाइड किया। अब हमें Ni फर्मियंस जो हैं उनको इन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल ओबे द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो हर एक सेल है इट कैन हैव ईदर वन और नो पार्टिकल, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ सेल्स जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे लिखा है GI is greater than equal to Ni, ठीक है, जो हमने पहले लिखा था। तो अब देखो किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालना सबसे इजी है। देखो ये क्या बता रहा है, देखो हमारे पास GI सेल्स हैं जिनमें हमें Ni पार्टिकल्स डालने हैं, ठीक है। और GI जो है वो Ni से ज्यादा है। अब हर एक सेल जो है उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, मतलब टोटल GI सेल्स में से जो हमारे Ni सेल्स हैं, ठीक है, वो हमारे कंप्लीटली फिल्ड हैं बाय द Ni पार्टिकल्स। हमारे फिर कितने सेल्स बच गए, GI माइनस Ni, ये सेल हमारे वेकेंट हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो फिल्ड होंगी, क्योंकि हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल जो है आ सकता है और बाकी सारी की सारी स्टेट जो है हमारी वेकेंट होंगी। सो इट मीन्स GI सेल्स में से Ni सेल्स हमारे फिल्ड हैं विद Ni पार्टिकल्स, हर एक सेल में एक पार्टिकल, और हमारे रिमेनिंग GI माइनस Ni सेल्स जो हैं वो वेकेंट रह गए। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग Ni particles in GI cells? बहुत सिंपल है, यू कैन डायरेक्टली राइट, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट GI
सी एन आई, डायरेक्टली यूज द कॉम्बिनेशन। हमने जी आई सेल्स जो हैं उसमें से एन आई सेल्स के अंदर हमने पार्टिकल्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी जी आई माइनस एन आई सेल्स जो है हमारे वेकेंट रह गए। देखो हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास लेट्स से 8 बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें हम कहते हैं हमारे 8 बॉल्स में से 4 ब्लैक है 4 वाइट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी एक ब्लैक बॉल निकालने की, तो हम वो कैसे निकालते हैं, 4c1 अपॉन 8c1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम अब इसमें जी आई सी एन आई कैसे आई प्रोबेबिलिटी, ये देखो, सपोज मेरे पास टोटल 4 ब्लैक बॉल्स हैं जिसमें से मुझे एक ब्लैक बॉल निकालनी है, तो एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4c1, मतलब 4 में से मैंने एक निकाल ली, 3 रह गई, कोई भी एक निकाल ली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं मैंने कौन सी निकाली, ठीक है, कौन सी निकालनी जो है दैट विल कम अंडर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल हमारे पास 4 ब्लैक बॉल्स हैं जिसमें से मैंने एक ब्लैक बॉल निकाल ली, तो 3 मेरे पास रह गई। उसी तरीके का केस यहाँ पर है, टोटल मेरे पास जी आई सेल्स हैं जिसमें में से मैंने एन आई सेल्स जो है भर दिए, जी आई माइनस एन आई सेल्स जो है वो मेरे खाली रह गए। उसी तरीके का सिस्टम हो गया ना, जैसे हमारा 4c1 होता है उसी तरीके का सिस्टम हमारा ये हो गया। सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द probability of distributing Ni particles in Gi cells, तो GiCNi मेरा क्या हो जाएगा, Gi factorial divided by Ni factorial into Gi minus Ni factorial, तो ये हमारी probability आ गई of arranging Ni particles in Gi cells obeying Fermi-Dirac statistics, ठीक है। Similarly, what will be the probability of distributing N1 particles in G1 cells, वो हो जाएगा G1C N1, that means G1 factorial upon N1 factorial into G1 minus N1 factorial. Similarly, distributing N2 particles in G2 cells कितना होगा, this thing G2C N2, G2 factorial upon N2 factorial into G2 minus N2 factorial. So what will be the total thermodynamic probability for a particular macro state? हमारी macro state क्या है, हमारी ये macro state है, इसी तरीके से हमने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में भी लिया था। ये macro state हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे फर्स्ट स्टेट में N1 पार्टिकल्स हैं, सेकंड में N2, थर्ड में N3, so on, kth में N के पार्टिकल्स, and we have to find the thermodynamic probability for this particular macro state. तो thermodynamic probability क्या होगी, हमारी सबका प्रोडक्ट। Now इसको जो है I can write in terms of pi, pi जो है हमारा it denotes the multiplication of terms corresponding to various values of I, जैसे समेशन को हम ऐड करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही पाई को हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। सो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पाई gi factorial upon ni factorial into gi minus ni factorial where I is going from 1 to k। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की। अब हमें क्या निकालनी है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, और हमें पता है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट जो है हमारी उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज मैक्सिमम। तो हमने जैसे पहले किया था हम उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का लॉग लेंगे, तो जब हम इसका लॉग लेंगे इट विल बी समेशन log gi factorial minus log ni factorial minus log gi minus ni factorial। आई होप ये इक्वेशन अब कैसे आई ये सब तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। मैंने ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी समझाया था जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव कर रहे थे, और मैंने ये बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव करते टाइम भी ये चीज समझाई थी कि हाउ वी कैन टेक द लॉग ऑफ दिस टर्म, ठीक है। हमारे पास ये टर्म्स क्या है, इन सबका प्रोडक्ट है, ठीक है। जब हम इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म एंड सो ऑन प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म। तो इन सबको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन लॉग ऑफ gi factorial upon ni factorial into gi minus ni factorial where I is going from 1 to
के, ठीक है। तो वो समेशन जो है हमारा यहाँ आ गया, और जो हमारे पास लॉग आया था जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी फॉर्म है लॉग ए अपॉन बी की। इट कैन बी रिटन एज लॉग ए माइनस लॉग बी। आई होप सबको क्लियर है। तो वहां से जो है हमारे पास ये टर्म आ गई। नाउ वील अप्लाई द स्टर्लिंग्स फॉर्मूला कंसीडरिंग एन आई एंड जी आई टू बी वेरी लार्ज। Ni और Gi अगर हमारा ज्यादा है, then we can apply the Stirling's formula which says that log n factorial is equal to n log n minus n। अब पहले का तुम कर चुके हो ना, तो ये वाला यूनिट तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होने वाला है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की भी तुम्हारे माइंड में एक कॉमन अप्रोच का आइडिया है। सिमिलरली जब हम आगे जाके फर्मी डिराक गैस करेंगे, तो उसमें भी तुम्हारे माइंड में एक आइडिया रहेगा किस तरीके से करना है, क्योंकि बोज आइंस्टीन गैस जो है तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज वी नो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हमारी डिफरेंट है। इट इज एप्लीकेबल फॉर फर्मियंस। बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज एप्लीकेबल टू बोसॉन्स। तो वहां पर ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा, बट जो अप्रोच है दैट विल रिमेन सेम। तो अब हमने क्या किया, स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन लगाया इसमें, तो लॉग डब्ल्यू हमारा आ गया समेशन ब्रैकेट में लॉग जी आई फैक्टोरियल बिकम्स जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई। सिमिलरली लॉग एन आई फैक्टोरियल हो गया एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। ऑलरेडी एक माइनस का फैक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। एंड लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल क्या होगा, जी आई माइनस एन आई इंटू लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई। नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस जो है वो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारा जो ये माइनस जी आई है इस प्लस जी आई से कैंसिल होगा। माइनस एन आई जो है हमारा, ये जो माइनस एन आई है दिस विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस प्लस एन आई। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद लॉग डब्ल्यू हमारा आ गया समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के जी आई लॉग जी आई दिस टर्म माइनस एन आई लॉग एन आई। ओ सॉरी, इस चीज का ध्यान रखो, ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। तो हमारे पास कौन सी टर्म आई, एक आई जी आई लॉग जी आई, एक हमारी आई माइनस एन आई लॉग एन आई, एक हमारी ये वाली टर्म आई माइनस जी आई माइनस एन आई इंटू लॉग जी आई माइनस एन आई। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ये हमारा जो प्लस जी आई है ये कैंसिल आउट होगा इस माइनस जी आई से, और ये जो माइनस एन आई है हमारा ये कैंसिल आउट होगा इस प्लस एन आई से। ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसका ध्यान रखना। So we'll be left with these three terms inside the summation. ठीक है, next step क्या होगा, for the state of maximum thermodynamic probability or for the equilibrium state, this should be maximum. So for the state of maximum thermodynamic probability, what we'll do, we'll differentiate this equation and equate it equal to 0. Why we do this? Because we know for maxima or minima first derivative is 0, and we have to find the most probable macro state or the equilibrium state, which is basically the state of maximum thermodynamic probability. तो thermodynamic probability अगर maximum है, that means उसका first derivative जो है that should be equal to 0. तो अब हम इस log w को differentiate करेंगे और equate करेंगे equal to 0. अब जैसे मैंने पहले बताया था बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में, उसी तरीके से जी आई हमारा क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो जी आई जो है हमारा, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स corresponding to the ith energy state, or it is representing the number of elementary cells in the ith compartment. So this is just a number which is not a variable quantity. तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है. सो व्हाट इज वेरिएबल हियर, द वेरिएबल क्वांटिटी इज Ni, बिकॉज द सिस्टम इज डायनेमिक. सो द पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर मैक्रो एंड माइक्रो states. Particles जो है they are continuously changing their state, they are moving from one compartment to the another compartment, or from the one energy state to the another energy state. So we can consider Ni to be a variable quantity, but Gi is a constant quantity. Now we'll differentiate this log W.
सो व्हाट विल बी डी लॉग डब्ल्यू, ये मेरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो फर्स्ट आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म. तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस एन आई एज इट इज रहा, लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एन आई डी एन आई, देन माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन हुआ डी एन आई इंटू लॉग एन आई. सिंपली मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाया है डिफरेंशिएशन का. नेक्स्ट अब हमें इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है. पहले हमने इसको एज इट इज लिखा माइनस ऑफ जी आई माइनस एन आई, फिर log जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन जी आई माइनस एन आई इंटू माइनस डी एन आई. यही है 1 अपॉन जी आई माइनस एन आई इंटू माइनस डी एन आई. आई होप डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है. नेक्स्ट हमारा क्या होगा फिर, माइनस log जी आई माइनस एन आई एज इट इज, और जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन दैट विल कम आउट टू बी माइनस डी एन आई. तो माइनस माइनस जो है हमारा यहाँ पर हो गया प्लस. नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी समेशन ब्रैकेट में एक हमारे पास टर्म आई लॉग जी आई माइनस एन आई इंटू डी एन आई, दैट मीन्स दिस टर्म. एक हमारे पास टर्म आई ये माइनस लॉग एन आई डी एन आई. ये हमारी टर्म क्या हुई, दिस इज जस्ट माइनस डी एन आई. ये हमारी टर्म एन आई कैंसिल आउट हुआ, ये हमारी टर्म बन गई माइनस डी एन आई. सिमिलरली जी आई माइनस एन आई यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट होगा एंड दिस टर्म बिकम्स माइनस 1 इंटू माइनस डी एन आई, दैट मीन्स प्लस डी एन आई. तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस डी एन आई, यहाँ से हमारे पास आया प्लस डी एन आई. तो ये माइनस डी एन आई और प्लस डी एन आई जो है कैंसिल आउट होगा एंड वील बी लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स. तो डी लॉग डब्ल्यू हमारा हो गया समेशन लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई, एंड वी हैव टेकन डी एन आई टू बी common. And for the maximum thermodynamic probability, or you can say for the most probable state, this differentiation should go to 0. So summation log gi minus ni minus log ni in brackets we have dni that is equal to 0. Now we'll apply the Lagrange's method of undetermined multipliers. एक हमारे पास ये term आ गई that is 0. Next we know that total number of particles are constant. n हमारा constant है, that is equal to summation ni I going from 1 to k. जब n हमारा constant है तो constant का differentiation 0 होता है. So dn that is equal to summation dni, ये हमारा 0 होगा. Next total energy हमारी constant है, u is equal to summation ni into ui, where I is going from 1 to k. अगर ये constant है that means इसका differentiation भी 0 होगा, तो du हमारा 0 होगा which is summation ui dn I. तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई. एक ये इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गई दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, ये आई दिस इज आल्सो इक्वल टू 0. सो वी विल नाउ अप्लाई द Lagrangian मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस अल्फा, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस बीटा, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस जो है उनको ऐड करेंगे विद दिस इक्वेशन 4.16. और 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा. तो हम जो है Lagrange's मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स यहाँ पे लगा सकते हैं. सो व्हाट वी गेट नाउ, डीएनआई हमने कॉमन ले लिया. फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, समेशन लॉग जीएनआई माइनस एनआई माइनस लॉग एनआई इंटू डीएनआई. ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी क्या हो गई, माइनस अल्फा समेशन डीएनआई. माइनस अल्फा को अगर हम अंदर ले गए इट बिकम समेशन माइनस अल्फा इंटू डीएनआई. थर्ड टर्म हमारी क्या है, ये वाली जिसको हम माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो माइनस बीटा को जब हम समेशन के अंदर ले गए तो हमारे पास क्या बचा, समेशन माइनस बीटा यू आई इंटू डी एन आई. तो डी एन आई तीनों में कॉमन है, सो वी हैव टेकन इट कॉमन एंड वी हैव दिस टर्म इन ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा क्या है, काइंड ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग ए अपॉन b. So we can write summation log gi minus ni upon ni minus alpha minus beta ui into dni that is equal to 0. Now जैसे हमने पहले किया था, अब ये summation जो है हमारा 0 होना चाहिए. हमारा जो dni है जो है it is non zero, so this bracketed term जो है that should be equal to 0. तो इसको हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया log ऑफ जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यू आई.
ये हमारा बीटा है, if it is not clear here. So if I'll take exponential on both sides, this log is basically the natural log, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. जब हम इसका exponential लेंगे, it becomes gi minus ni upon ni is equal to e raised to power alpha plus beta ui, or you can write e raised to power alpha into e raised to power beta ui. So from here we can write left hand side as 1, we can write it as gi upon ni minus 1. ठीक है, हम gi minus ni upon ni को कैसे लिख सकते हैं? We can write it as gi upon ni minus 1 and that is equal to e raised to power alpha into e raised to power beta ui. So from here what we will get, ni हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा -1 इस साइड चला गया, तो ये हमारा हो गया +1. ठीक है, फिर यहाँ से हमारा ni क्या हो जाएगा, ni will be equal to gi upon e raised to power alpha into e raised to power beta ui plus 1, where beta is 1 upon kt. So we get ni is equal to gi upon e raised to power alpha plus ui upon kt plus 1, or you can write e raised to power alpha into e raised to power ui upon kt plus 1. तो यहाँ पर तुम देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर हम कंपेयर करें, हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या था, ni इज इक्वल टू gi अपॉन e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा ui. ठीक है, सिर्फ ये वाली टर्म थी. बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आया, ni इज इक्वल टू gi अपॉन e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा ui -1, वहां पे यहाँ माइनस था. ठीक है, फर्मी डिराक में क्या आया, हमारा वैसा ही आया, बस यहाँ माइनस की जगह हमारे पास प्लस आ गया. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ये वाली टर्म नहीं होती, बोस-आइंस्टीन में ये -1 होती है, फर्मी डिराक में ये +1 होती है. So this relation 4.20 is known as the Fermi-Dirac distribution law, which gives the most probable distribution of particles that are obeying Fermi-Dirac statistics. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, from this equation we can see that जो हमारा denominator है that is e raised to power alpha into e raised to power ui upon kt plus 1. इसका मतलब हम 1 के साथ जो है एक टर्म को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ प्लस का फैक्टर है, इसका मतलब जो ये हमारा डिनोमिनेटर है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1 के साथ जो है हमारी कुछ टर्म ऐड हो रही है. ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, सो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम जो है वो हमारी इट कैन बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के साथ एक टर्म जो है वो ऐड हो रही है. अगर ये टर्म 0 है तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल टू 1 है. अगर ये टर्म हमारी नॉन 0 है तो हमारी वैल्यू जो है इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. So therefore for Fermi-Dirac system जो हमारा occupation index है that means ni upon gi it is always less than or equal to 1. हमने देखो ये कंडीशन लिखी थी कि gi जो है हमारा that should be greater than equal to ni. जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनमें हमें ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो या तो ni के इक्वल होंगे या ni से कम होंगे या ni से ज्यादा होंगे. सॉरी हमारे पास टोटल gi नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर हमें ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमारा जो हर एक सेल है इट कैन अकोमोडेट 0 और 1 पार्टिकल. इसका मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं gi जिनके अंदर हमें ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सेल जो है या तो ये ni के बराबर हो या ni से ज्यादा हो. ठीक है, दिस इज द condition. So from this condition we can write that ni upon gi जो है हमारा it will be less than equal to 1. या तो ये लेस होगा 1 से या इक्वल होगा 1 के. वही चीज यहाँ पर भी आई हमारी फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. जो हमारा ऑक्यूपेशन इंडेक्स है ni अपॉन gi, ठीक है, वो हमारा कितना आया, इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1. वही हमारा यहाँ से आ रहा है. ठीक है, ये हमारा
इक्वल टू 1 कब होगा ni/gi, जब हमारी ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ये 0 होगी, उस केस में ni/gi जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, 1/1 इज 1। और अगर ये वैल्यू हमारी नॉन जीरो होगी तो उस केस में हमारा ni/gi जो है इट विल बी लेस देन 1। डिनोमिनेटर जो है हमारा वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 डिनोमिनेटर क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1। सो दिस इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, for the most probable state, or you can say that this is the Fermi-Dirac distribution law giving the most probable distribution of particles obeying the Fermi-Dirac statistics। And from this relation we have seen that this factor जो है हमारा the denominator it will always be greater than equal to 1, so gi जो है it will always be greater than equal to ni, or you can say that occupation index ni/gi should be less than equal to 1। So now this is about Fermi-Dirac distribution law। अब हमारा next step क्या होगा, next step is to study the Fermi-Dirac gas। तो Fermi-Dirac gas जो है हम उसी तरीके से स्टडी करेंगे जैसे हमने बोस-आइंस्टीन गैस करी थी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो होगा to write this Fermi-Dirac distribution law in the continuum limit। ठीक है, continuum limit में क्या होगा, we are considering these energy levels of the system to be very close। ठीक है, इतने close हैं कि we can consider it as a continuous spectra। So for this the Fermi-Dirac distribution law will become जैसे हमने बोस-आइंस्टीन में किया था, it will reduce to nu du is equal to gu du upon e raised to power alpha into e raised to power u upon kt plus 1। फिर nu du हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ni को हमने रिप्लेस किया by nu du, gi को हमने रिप्लेस किया by gu du, and this is only possible if we are considering the energy levels of the system to be very closely spaced। ठीक है, if energy levels जो है they are very closely spaced, then in that case we can consider the continuous spectra case। We can consider it to be continuous rather than discrete, and this is only possible if these energy levels are very very closely spaced to each other। और ये मैं बोस-आइंस्टीन में ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। सो nu du जो है अब हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स lying in the energy range u and u plus du, or you can write it is representing the number of fermions lying in the energy range u and u plus du। so what is gu du, gu du जो है it is representing the number of energy levels lying in the energy range u and u plus du। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, द क्वांटिटी gu इज नोन एज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, gu इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। बोस-आइंस्टीन में भी मैंने ये चीज बताई थी। डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होगी नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर हम नंबर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा nu du जो है जब मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी जब मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, सॉरी ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड है इसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन द एनर्जी रेंज u and u plus du पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस फैक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर डेंसिटी, ठीक है, और यू कैन से द पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये, so this is representing particle density, number of particles lying in the energy range u and u plus du per unit वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पार्टिकल डेंसिटी। सिमिलरली राइट हैंड साइड में gu du हमारा क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स और द नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट्स lying in the energy range u and u plus du। now this is divided by volume, so this whole factor is representing the number of particle states lying in the energy range u and u plus du per unit volume। So this is representing the density of particle states, or we can simply write density of states। So gu du divided by v is representing the density of states। ठीक है, so आज हमने क्या किया, we have
derived the Fermi-Dirac distribution law. ठीक है, using that same common approach, we are using the same approach in all the three types of statistics to derive the distribution laws. हमने यहाँ पर भी वही किया, बस यहाँ पर एक डिफरेंस था हमारा, gi जो है that is greater than equal to ni. इस वजह से जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी थी उसमें चेंज आया था. उसके बाद हमने ये जो हमारा डिस्क्रीट केस आया है, जो हमारा सिंगल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जो है हमने लिखा इन कंटिन्यूम लिमिट, वो हम लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल स्टडी फर्मी डिराक गैस एंड फर्मी एनर्जी. इसमें हम पहले जो है वही अप्रोच यूज करेंगे जो हमने बोज आइंस्टीन गैस के लिए करी थी. फिर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट टू गेट द required solution. ठीक है, so in the next class we'll start with the Fermi Dirac gas.